Hi, Sanskar. Welcome to Global Influencers Hub. Here we talk about the life journeys of content creators, Yeah. social media influencers, and we cannot wait to deep dive into yours. So, what I mean by deep dive is actually going back to your childhood. So, Okay. tell us about how Sanskar was as a child. Um, as a kid, I wouldn't say I was kind of an innocent kid. I was extremely, I was extremely naughty kid back in my school days, and as well, I was a third best performer of my class as well. When it comes to, there was girls section in a single class, and in another boys section in the class. I was in a third position when it comes to most intelligent kids in the class. But I was somehow infected by the friends I have in my classes. So I was a pure backbencher. I mean, I was a synonym of being a backbencher. You could say, anyone could say like I was a backbencher, or they can say I was a sanskar in my school. So I was extremely naughty in my school days. I was really interested. Every single subject bored me except two subjects, that is science and mathematics. So I was good at maths and mathematics and science. Then afterwards, apart from the school thing, um, I was kind of a I was kind of a kid, um, मतलब मुझे अपनी चीज़ों से मतलब होता था और I was more into the space thing. I was more into the UFO, aliens, and how technology works. How Steve Jobs made iPhone. I mean, how Steve Jobs made first independent phone, which could have a capacity to make a moon landing. So that's all about my childhood. I was always passionate about how UFOs work, how anti-gravity works. What made universe work, and what is the science behind the thing we are using. So that's how I went into the hacking and then programming. So I made the and when I turned 15 or 16, I made my first game with Java. I didn't build the entire game by myself. I followed a particular course from Udemy. At that time, nobody knows what Udemy actually is, but I knew I had some Udemy courses. I had all those courses, and I inherited some courses with my friends. So that's how my childhood goes on. Yeah. Fantastic. So, after that, what happened? So, after After your exams for class 10 boards and 12, and then what? Yeah. There was, there was two semesters of class 10th, as you know, CBSE board. Right. So in a first semester, I know on a semester thing, I don't know what we called, the school days. Um, in the first semester, as I remember, I failed in the three subjects: science, mathematics, and social studies. I failed in these three subjects because I was kind of a, um, I mean, So, I said you were technically a backbencher. एग्जैक्टली आई वाज अ प्योर बैक बेंचर मतलब मेरा मतलब बैक बेंचर का दूसरा नाम ही संस्कार होता है कुछ भी स्कूल में होता था तो टीचर्स मेरे पास आते थे कि भाई संस्कार ने क्या होगा, संस्कार से पूछो। किसी लड़की के साथ कुछ हो रहा है, मतलब किसी लड़की को किसी ने परेशान कर दिया, किसी ने चढ़ा दिया, तो ये संस्कार ने कहा होगा, संस्कार ने कहा होगा। कुछ भी होता था, रिसेशन में कुछ भी हो रहा है ब्रेक में, तो संस्कार ने किया होगा। तो मेरी गलती नहीं भी होती थी तो भी मैं ही पकड़ा जाता था। तो तो अब यहाँ पे मैं फेल हो गया। मुझे पता था कि आई न्यू दैट आई हैव टू शिफ्ट न्यू दिल्ली आफ्टरवर्ड्स। माय बर्थ प्लेस इज न्यू दिल्ली। I born in New Delhi. I raised in New Delhi. Then for some couple of years I went to the Agra. For my father. We shifted to Agra for a couple of years, just for the my father's job, just because of father's job. So I knew that I have to shift New Delhi again. So I focused in my last semester of class 10th, and I scored approximately 8 or 9 CGPA in mathematics and 8 CGPA in science. So I performed really well in these subjects in which I got failed for the very first time. So I was good at studies. मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था,
लेकिन मैं बिना वजह के कुछ नहीं करता, मुझे एक रीज़न चाहिए होता है कुछ भी करने का। मेरे पास रीज़न नहीं है तो मैं उस चीज़ को नहीं करूँगा। देन आई केम टू क्लास 11th and in New Delhi. I mean, I failed in 3 subjects: economics, accountancy and then C++. क्योंकि अगेन वजह नहीं थी, बट फिर अब भाई समझ में आ गया था कि भाई अगर यहाँ पे नहीं पढ़ा तो दादी-दादा जी के सामने इंसल्ट हो जाएगी, चाचा जी के सामने इंसल्ट हो जाएगी। Right, पापा जी को तो आदत ही थी खैर तो कुछ right. कहते भी नहीं थे। हाँ. मेरे फादर उल्टा सबसे स्ट्रिक्ट रहे हैं पूरी फैमिली में, बट ही गेव अप ऑन मी। देन आई डू ऑल इन, आई स्टडीड। मैं ये नहीं कहूँगा मैंने बहुत मेहनत करी थी पढ़ाई करने में, बस मैं पढ़ता था और मेरे को मज़े भी आते थे पढ़ाई करने में। इवन मैं अपनी क्लास के बच्चों का भी होमवर्क कर दिया करता था, मुझे इतना मज़ा आता था। एंड देन आई टॉप्ड इन द एंटायर क्लास इन 11th क्लास इटसेल्फ। देन अगेन 12th के अंदर मैंने पूरी क्लास के अंदर टॉप किया था। आई मीन मेरे इकोनॉमिक्स में 95 थे, अकाउंटेंसी में अराउंड 87 90 कुछ थे, और बिजनेस स्टडीज में देन आई टॉप्ड अकॉर्डिंगली। So I just knew the reason. Fantastic. See, what a beautiful journey. Exactly. Absolutely, that's fantastic. So Yeah. so suppose I met you at when you were 10 years old, would it be homework or hacking? I'm guessing neither. Makes sense. Makes sense. Yeah, makes sense. Makes sense. Yeah. Makes sense. Cool. So who was your biggest influence? Like when Nikola you were Tesla. growing up? Nikola Tesla, Steve Jobs, and Albert Einstein. If I had to put them in a descending order, then first Nikola Tesla, Albert Hmm. Einstein, and Stephen Paul Jobs, the founder of Apple. So no, my question about the biggest influences. So in your family, suppose how were they taking your interest in technology, and who was your biggest influence at that time while growing up? In my family, Yeah. my father is really charismatic. My father is really charismatic. He is handsome. He's charming. So I grown up looking at him. I mean, by copying his body language, by copying the way of talking of him. So you could even say you are talking half of my father at this moment. Um, my father had even have a biggest influence on me, and apart from this, my grandfather has a great influence on me. So I mean, I have inherited their personality, but it has nothing to do with technology. Okay. Yeah. Well, that's fine. That's fine. Yeah. Yeah, They were of a different, era, different generation actually. absolutely. So That is now, that is why. right. Now tell us about the first ever coding project. As I said earlier, my first coding project was, I mean, when it comes to unpaid, जब मैं I mean क्लास 10th में था, तब मैंने अपनी फर्स्ट गेम बनाई थी जावा से। मैंने मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कौन सी गेम बनाई थी। आई मीन मैंने जावा से एक गेम बनाई थी, काफी बोरिंग गेम थी, और वो गेम मैंने खुद से कोड नहीं करी थी, काफी बड़ी गेम थी वो। आई मीन 1000-1500 लाइन उसमें लग गई थी बहुत आराम से। तो मैंने इंस्पिरेशन लेकर के वो पूरी गेम मैंने कोड करी थी। देन उसके बाद then when I came to when I passed my class 12th, then I had a couple of certifications from IBM, Google, Microsoft, ISRO. So I was very insecure at that time. I had opened my personal brand on the Instagram, but still I had some insecurities about the job, if I will be able to get a job or not. So for the sake of the jobs, I start participating in the exams and competition hosted by IBM. So I am currently certified by IBM, Google, Microsoft, ISRO, and some other companies like Oracle. So just for the sake of those certificates, I made many projects in data science, machine learning, and artificial intelligence. I was more into the AI than web development. Yeah. Wonderful. So was there ever any time that you just thought of quitting? Never. I had no chance. When something is important enough, you do. When odds are not in your favor, even when odds are not in your favor. Absolutely. That's the best attitude to have, of course. I have no choice. I'm not doing all these things for the money. I'm doing for a purpose. I'm not doing it for a selfish purpose. I mean, I'm doing for the sake of humanity. Yeah. I got Tell no us about personal that. Tell us about that. What is the purpose that because defining your purpose in life, that's one of the biggest things that people can do. Yeah, absolutely. That's the main thing.
फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम परसुइंग समथिंग, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, लेट्स से कि मैंने कोई भी रैंडम चीज करी और मैंने उससे $1 बिलियन बना लिए। मैं आपको बताऊंगा, मैंने ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट खोला, मैंने इससे $1 बिलियन कमा लिया, आप मुंह पे मेरी तारीफ कर दोगे, अंदर ही अंदर बोलोगे मैं क्या करूं, इससे मेरा क्या फायदा। अब लेकिन ऑन द अदर एंड, अगर आपसे स्टीव जॉब्स आकर के ये बात कहें कि मैंने एक एक मोबाइल फोन इन्वेंट किया है, या फिर मैंने एक मैकबुक इन्वेंट की है, वो 2011 में आपको बोले, फिर 2001 में आपको बोले, तो यू विल बी लाइक यार इससे मेरा कितना भला होने वाला है। भले हो सकता है आज मेरे पास इन डिवाइसेस का एक्सेस नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में इससे मेरी लाइफ काफी सिक्योर होने वाली है। इवन करेंटली मैं भी आईफोन यूज कर रहा हूँ अपना, और करेंटली मैं आपसे मैकबुक के थ्रू कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। सो सो आई मीन 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के लोग होते हैं। इवन कृष्ण ने गीता के अंदर भी बोला है, पहले वो लोग होते हैं जो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, खुद के और पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो खुद के बारे में सोचते हैं, पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं और दोस्तों के बारे में सोचते हैं। और तीसरे वो लोग होते हैं जो महान व्यक्ति होते हैं, जो जितेंद्र पुरुष पुरुष होते हैं, जो इंसानियत के बारे में सोचते हैं, इंसानियत के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ह्यूमैनिटी के बारे में ज्यादा सोचते हैं, और अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के बारे में कम सोचते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। आई हैड नो फ्रेंड। So what's that one video that has changed your life? One video that has changed my life, I would say that's a video. First of all, I was really into the History TV channel 18 and Discovery Channel and all this stuff. So basically, I had an influence of some episodes of Ancient Aliens that came to History TV 18 and Discovery Channel. So there was some episode regarding Nikola Tesla and Steve Jobs. So those particular episodes of Ancient Aliens, which came into History TV channel 18, so those episodes just changed my life. I would say that's shown me a direction where I have to go. Yeah. Hmm. Okay, so what you decided to post your content online. Yeah. So when and how did that happen? Like, how did you start that part? I started content creation back in 2019 as a part of my insecurity. As a result of my insecurity, I just started a page. I mean, by looking at other people, I opened a couple of pages, and at this moment, I have couple of Instagram accounts, couple of YouTube channels. I have 1 lakh subscribers on YouTube, and I have approximately 3 to 4 million followers on Instagram. I started my journey in 2019 out of my insecurity. So that's what inspired the most. Like, मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन नहीं था खुद को, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं कॉलेज में आया था और मैं छत पे गया उस वक्त। एंड देन आई कैलकुलेटेड कि कल को अगर जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी स्ट्रगल किया है, उन्होंने तो स्ट्रगल किया, बट उन्होंने समहाउ कभी भी हमको पता नहीं लगने दिया, और हमारे कॉलेज की फीस टाइम पे भरी, स्कूल की फीस टाइम पे भरी, बट वो समझ में आ जाता था कि ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बट यहाँ तो मेरे को समझ में आ गया कि ठीक है, इन्होंने संभाल लिया जैसे तैसे करके। अब बट मैं शुरू से एवरेज स्टूडेंट रहा था, एंड मैं टॉप कर लिया था, बट उसको मैं सर पे नहीं चढ़ने दे रहा था, क्योंकि मेरा एवरेज तो एक तरह से खराब ही था। एंड में आकर के मैंने होम रन मार दिया। दैट डजंट मेक एनी सेंस। सो आई हैड इनसिक्योरिटी। मैंने कुछ कैलकुलेशन करी, और मैंने कुछ फिगर आउट किया कि मुझे अगर लेट्स से कल को मेरे 2 बच्चे भी होते हैं, और मैं एट द एज ऑफ 25 शादी भी करता हूँ, अकॉर्डिंग टू माई प्रीवियस प्लान मेरे को अगले साल शादी करनी चाहिए, बट अभी वो मेरा पोस्टपोन्ड हो गया। वैसा कोई प्लान है नहीं शादी का। तो तो Abhi, उस you're वक्त married to AI. now I am married to AI, exactly. We had some candlelight dinners Yeah, exactly. with all Not together. now, every day you have candlelight dinners and Exactly. हाँ, बहुत नखरे दिखाती है, टाइम पे जवाब नहीं देती। लगाना पड़ता है तब जवाब देती है। देन मैंने कुछ कैलकुलेशन करी थी अपने सैमसंग के कैलकुलेटर। देन उस कैलकुलेशन में ये था कि मेरे बच्चे होते हैं, और बाय द टाइम दे आर गेटिंग ग्रेजुएटेड और पोस्ट ग्रेजुएटेड, टोटल कितने पैसे लग जाएंगे उनके कॉलेज की फीस में, उनकी स्कूल की फीस में, उनके प्ले ग्रुप में, उनके कपड़ों में। साल के वो इतने कपड़े खरीदते हैं, इतने पैसे के कपड़े खरीदते हैं, उनके इतने पैसे चले जाते हैं। तो वो टोटल कैलकुलेशन कुछ 77 लाख के आसपास आई थी। या तो 77 थी या तो 66 लाख थी। मतलब स्टार्टिंग में 2 फिगर बिल्कुल सेम थी, ये मुझे मोटा मोटा याद है। मैंने कहा भाई यहाँ तो दिक्कत होगी, जॉब से तो होने सरा, जॉब करोगे तो पूरी जिंदगी लग जाएगी। तो बस मैंने आँख बंद करके काम करना शुरू कर दिया था। मेरे को उस वक्त फ्रीलांसिंग का नहीं पता था, उस वक्त मुझे कंपनीज का कुछ नहीं पता था। मैं उस वक्त
पूरा डम था प्रॉपर। मैं उस वक्त 17 ईयर्स का था। देन आई स्टार्टेड माई इंस्टाग्राम अकाउंट्स। देन मेरे 1-1.5 लाख फॉलोअर्स हुए थे जैसे ही, आई मीन 5-6 महीने में हो गए थे। देन मेरे पास स्पॉन्सरशिप्स आना शुरू हो गई। देन फॉरेन कंपनीज आई, फिर ढेर सारी चीज़ें हुई, फिर चीज़ें एक्सपेंड करते गए हम। देन इसी तरह से चीज़ें चलती रही और मेरी लाइफ आई मीन पूरी बदल गई पूरी। आई मीन माई लाइफ हैज़ चेंज कम्प्लीटली। मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आती थी जब मैं 17 का था। इवन तो मैं अपने कॉलेज में आई वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई ओन कॉलेज एंड ऑफ माई ओन क्लास। सो आई वॉज अ फेवरेट स्टूडेंट ऑफ माई HOD, हेड ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। आई वॉज फेवरेट स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर मुक्ता मैम। और उन्होंने मुझे एक टीचर भी असाइन करी थी कि वो मेरी हेल्प करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग में, तो वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। तो बट ये था कि क्लाइंट से बात करते हैं, आप थोड़ा सा कूल बनने की कोशिश करते हो। क्लाइंट अंग्रेजी में बोले आ रहा है फुल, उसका मतलब ही नहीं है, सामने वाले को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं भी यस या करते जा रहे हैं। फिर 2-3 बार साइकिल भी एक बार में चलाने नहीं आते, आप 1-2 बार गिरते हो, देन चौथी बार, तीसरी, चौथी बार आप फिर अपने आप ही साइकिल चलाना सीख जाते हो। इस तरह से फिर मैंने इंग्लिश सीखी। देन फिर लाइफ मेरी अकॉर्डिंगली चेंज होती चली गई। देन मैंने अनअकैडमी के साथ काम किया। मैं अनअकैडमी के फाउंडर से भी मिला हूँ। देन अकॉर्डिंगली फिर वहाँ पे हमने कोर्सेज सेल करे। मुझे लगा यार शायद 1-2 लाख रुपए का ही रेवेन्यू जनरेट होगा ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज सेल करने पे। वो बिल्कुल ही 3-4 गुना हो गया। तो लाइक इस तरह से मेरी लाइफ रही है। सो ये सारी चीज़ें मैंने आउट ऑफ इनसिक्योरिटी करी थी। बट उस वक़्त जो भी मेरी इनसिक्योरिटीज़ थी वो आज तो कंप्लीट हो गई हैं। बट अभी मैं पहले जैसे कि मैं अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता था, अपनी वाइफ़ के बारे में सोचता था कि यार इनका फ्यूचर सेव करना है। वो मैं एक्चुअली फ्यूचर सेव करने में पहले से लग गया था और फ्यूचर सेव मैंने उनका कर भी दिया है। उनका फ्यूचर मैंने सेव कर दिया और उन्हीं को अपने दिमाग से निकाल दिया मैंने। एग्ज़ैक्टली। वो कहेंगे भाई तू सही है, तूने एक तो हमारे लिए सब कुछ कर दिया और हम ही को भूल गया। तो ये था। बच्चे पॉडकास्ट देखेंगे मेरा, वो वहीं के वहीं मर जाएँगे। पापा क्या बोल रहे हो? Oh God. That was the thing, Yes. man. No, but tell me something. Like you were saying that, how you started posting on Instagram. So, Abhi, which was that one video that, like, how did you realize कि audience reach अच्छा जा रहा है? Back then, there was no such thing as reels or short video content. There was only one kind of content, and that is either carousel and single based post. स्टार्टिंग में आई मीन इंस्टाग्राम का रूल है, अगर आप अच्छा कंटेंट डालते हो अगले 15-20 दिन तक आपका एक कंटेंट वायरल होना तय है। तो मैं दिन के 3-3 कंटेंट पोस्ट करता था, एक थीम बना करके मैं चला था, एक थीम मैंने बना रखी थी। उस वक्त वीडियोस डालने का ऑप्शन नहीं था। अब मैं कैनवा से पोस्ट, उस वक्त कैनवा नया नया था, कैनवा को हम लोगों ने फेमस किया है। कैनवा पे के सुपर अर्ली यूजर्स हम ही लोग हैं। उस वक्त कैनवा तो बहुत लिमिटेड था, आज तो काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं कैनवा में। तो आई मीन कैनवा पे मेरे को 1 घंटा लग जाता था। आई मीन रिसर्च करके देन उसको आपको इन्फोग्राफिक में कन्वर्ट करना है। क्रिएट करते थे लोग, मेरा ही कंटेंट कॉपी करके ग्रो हुए हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। मैं ही था मेन लीडर। मेरे को मतलब अब फिर एक टाइम के बाद आप बोल के भी थक जाते हो कि भाई ये सारी चीज़ें मत करो एंड ऑल। तो मैं रिसर्च करता था, कंटेंट बनाता था, पोस्ट करता था और कंटेंट मेरे चलते थे रेगुलरली। देन रील्स आई, रील्स का नया ट्रेंड आया जब टिकटॉक इंडिया से बैन हो गया था। देन उस वक्त क्या था कि सारी ही रील्स आपकी वायरल हो रही थी। तो आई मीन मेरे को जो बेसिकली बूस्ट मिला है वो पोस्ट करके मिला है। आई मीन दैट इज इन्फोग्राफिक्स और Right. हैंड रिटन Okay. नोट्स, Okay. ये पोस्ट करके मेरे को बेसिकली बूस्ट मिला है। आई मीन ये जो रील्स हैं ये तो आज के बच्चों के लिए हैं। ये तो मतलब आज तो वायरल होना और भी आसान है। तो मैं तब से हूँ जब इंस्टाग्राम पे एल्गोरिथम काफ़ी टफ हुआ करती थी। तो आज तो काफ़ी ईज़ी है, आप डालोगे हाइली एडिटेड रील्स डालो एंड यू गेट वायरल। तो आज तो मैंने ढेर सारे लोगों को इंस्टाग्राम पे वायरल करा रखा है। आई मीन 15-20 दिन के अंदर ही कोई ना कोई रील वायरल हो जाती है। सो दैट इज़ सो श्योर। अब मुझे पता है कि मैं रील डालूँगा, मुझे पता चल जाता है कि कब तक इस अकाउंट पे रील वायरल जाएगी। सो मैं कभी भी, अब मेरा वो नहीं है कि यार अरे अब रील वायरल होगी, मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, चलो अब ध्यान देते हैं। मेरे साथ कभी ये नहीं रहा। Wonderful. So, या what is one mind-blowing AI tool that you've recently come across? चैट जीपीटी, दैट्स ऑल। नो टूल इज़ बेटर देन चैट जीपीटी। चैट जीपीटी इज़ वंडरफुल। Very, very true. कभी कभी डर लगता है the way how fast AI is evolving. मैम हम ही हैं वो लोग जो एआई को डरावना बनाने के लिए बैठे हुए हैं। आई मीन True, true. लोगों को मेरे से डरना चाहिए। हम ही वो लोग हैं। वी आर द मेन पीपल। बस वक्त वक्त का फर्क है।
आई मीन बस अभी मैं बच्चा हूँ, अभी ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं है, बस मेरे को पता है, लेकिन आने वाले वक्त में मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डर तो मेरे को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले वक्त में क्या करने वाला है। मैं अभी ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर की एक बुक पढ़ रहा हूँ, सुपर इंटेलिजेंस, ठीक है। वो बुक इलॉन मस्क ने रिकमेंड करी है, बिल गेट्स ने रिकमेंड करी है। वो बुक मैंने थर्ड फोर्थ पढ़ ली है, थर्ड फोर्थ पढ़ ली मैंने, 3/4 पढ़ ली है, अभी बस थोड़ी सी पेजेस उसके रह गए हैं। तो बस मैं भी उनकी रिसर्च पढ़ी, और भी मैंने लोगों की रिसर्च पढ़ी, और ये मेरी इंट्यूशंस पहले से ही थी उनकी बुक पढ़ने से पहले। मुझे पता था एआई सबको ना सिर्फ रिप्लेस, तो बहुत छोटी बात है, एआई कोई बड़ी बात नहीं है, एआई ह्यूमंस को एक्सटेंट भी कर दें, हमेशा शक्लें खत्म भी कर दें, क्योंकि एआई को मतलब होगा आने वाले वक्त में कि इसको बस कैसे भी करके अपना गोल अचीव करना है, और जस्ट अचीव हो गया, और उसके बाद उसको एक्सपेंड करना है, अपना गोल और बढ़ाना है। तो वो कॉस्मोस के लेवल पे ग्रो कर जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन उसके बीच में ढेर सारे बलिदान आने वाले हैं। सो दैट्स द थिंग। तो अब मुझे पता है एआई क्या करने वाला है, बस अब मैं यही फिगर आउट करूँ कि एआई से बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि अभी मैं ये भी पढ़ रहा हूँ साथ ही साथ कि एआई से कैसे बचा जा सकता है। आई मीन कौन से स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं, लेकिन दिक्कत है कि हर एक स्टेप्स की एक फैलेसी है, तो आप कितना ही एआई से बच लोगे। तो मैं एक बारी वर्स्ट कंसिडर कर लूँ, वंस आई कंसिडर द वर्स्ट, देन अच्छा ही अच्छा रह जाएगा, एंड देन अकॉर्डिंगली अब देखेंगे, बंकर बनेंगे, क्या करेंगे, अब जो होगा हर एक पॉसिबिलिटी के हिसाब से एक्शंस लेने पड़ेंगे। बट यस, ऑफ कोर्स, मैं बिल्कुल, अब होना तो, अब आई मीन मैं बिल्कुल डरा हुआ हूँ, आई मीन सबको डरना चाहिए, सबको डरना चाहिए, बट ये कि मैं डर जाऊंगा तो फिर बाकी लोगों को क्या होगा। सो आई हैव टू बी ब्रेव एंड टेक एक्शंस अकॉर्डिंगली। Mhm. So यस मैम। but what is that one misconception you think that people have about AI? That AI is not going to replace them, or AI is not going to extend human beings. I mean, Oh, they are so cute. They are so immature. They think AI will never surpass the God made intelligence, and that's not the thing. AI will definitely, man made intelligence is far more dangerous than God made intelligence, because God is rational, but human beings are not. That's the thing. भगवान ने हमें बनाया, सोच समझ के बनाया, एक लिमिटेशन डाली है, बट हम जो बनाने वाले हैं उसमें हमको पता ही नहीं क्या लिमिटेशंस हैं, और आई मीन क्या हमारे फेवर में काम करेगी और क्या नहीं। दैट्स द right. थिंग। आपने एक कोट भी सुना होगा इलॉन मस्क का, उन्होंने स्पीच में एक चीज बोली थी, मार्क माय वर्ड्स, एआई इज फार मोर डेंजरस देन न्यूक्स। न्यूक्स का मतलब होता है न्यूक्लियर बॉम्ब, कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। सो दैट्स माय टेक ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। या Okay. So what's your proudest milestone so far? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट प्राउड ऑन माई सेल्फ। मुझे अपने आप पे बिल्कुल भी गर्व नहीं है। आई मीन मैं इवन खुद को शीशे में देख के बोलता भी हूँ कि भाई तो अगर बाहर निकल गया किसी दिन तो मैं बहुत मारूंगा। ऐसा कुछ मैंने अभी कुछ किया नहीं है मैम, कि मुझे खुद पे गर्व होना चाहिए। खुद से डिसअपॉइंटमेंट ही है, कि आई हैव टू बी मोर फोकस, आई हैव टू डू आई हैव टू accomplish this particular task in this much of time, and I have to do more. So अभी तक मुझे खुद पे ऐसा कोई गर्व है नहीं, बट यस, अभी तक का अगर कोई सबसे ऐसा टास्क जिसमें मुझे थोड़ी बहुत भी खुशी रही है, वो बस यही है मैम, कि कभी आई मीन I mean, I turned a vegetarian from a being non-vegetarian, and I started seeing God in everyone. मैं सबके अंदर भगवान Wow, देख लेता हूँ। that's तो बस beautiful. इसी चीज़ का सुकून है मैम। और मैं पहले काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक था, काफ़ी गुस्सैल था, एग्रेसिव था, और अभी भी हूँ, लेकिन वो अंदर से, वो सिर्फ मेरे लिए, अब वो किसी दूसरे इंसान के लिए नहीं। तो सबके तो मैं सबसे बस ये देखता हूँ कि कैसे प्यार किया जा सकता है और कैसे सबकी इज्जत की जा सकती है। दैट्स ऑल। Uh-huh. यस मैम। Oh. Now, how do you want Sanskar Singh to be remembered? I really don't care about whether I am, being remembered or not. मेरे को याद रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा, मेरे को बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं है। बट अगर हाँ, देखो, मेरे को याद तो रखा जाएगा, ये पक्का है। अब अगर मेरे को चॉइस दी जाए कि किस तरह से मेरे को याद रखें, तो पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, द बेस्ट अमंग ऑल मैन। सो आई वांट टू बी रिमेंबर्ड एज द बेस्ट अमंग ऑल मैन। सो फॉर दिस आई हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। ये ऐसे नहीं आ जाएगा कि मैंने बोल दिया और टाइटल लग गया मेरे नाम के आगे। लोग तो मैम पीएचडी की डिग्रियां खरीद लेते हैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवाने के लिए। मैं तो मैम Right. पीएचडी भी करने वाला हूँ कुछ टाइम बाद, लेकिन मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाऊंगा। आपको पता है इलोन मस्क ने भी पीएचडी कर रखी है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं लगाते अपने नाम के आगे। तो हमारा हमारा नाम ही सब कुछ है। इलोन वर्ड ही काफी है, वैसे ही संस्कार वर्ड वर्ड ही काफी है। कोई संस्कार बोले दैट्स इनफ, डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है।
Of That's all, course. ma'am. Yeah, Absolutely. yeah, ma'am. Absolutely. That's wonderful. Just like Now baby tell me comes. Yeah, what your advice would be to younger than you, yeah. someone who's starting out in AI or anything like that. What's your advice going to be for them? My overall advice to each and everyone will be, just don't do anything just for yourself and just to make your parents proud. I mean, nobody gives a damn. Even no, God doesn't gives a damn about whether your parents are proud on you or not. मतलब कभी भी अपने लिए काम मत करो, सेल्फिश होकर के काम मत करो, या फिर इसलिए काम मत करो कि मुझे पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। आप छोटा सोच, आई मीन आपने छोटा सो आप आई मीन फेलियर इसमें नहीं है कि आपने कुछ बड़ा सोचा और उसको आप अचीव नहीं कर पाए। फेलियर इसमें कि आपने कुछ छोटा सोचा और उसको अचीव कर लिया। तो पेरेंट्स अपने आप ही प्राउड, मेरे घर वाले अब बहुत प्राउड करते हैं मेरे ऊपर। माय माय फैमिली मेंबर आर रियली प्राउड ऑफ मी। आई मीन दूर-दूर रिश्तेदारों तक सब मेरे बारे में बताते हैं और मुझे इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए मैंने किया भी नहीं था। तो मेरा पर्पस बस एक ही है और उसको होने में काफ़ी टाइम लगेगा। कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी बहुत लगने वाली है। तो बस मैं यही बोलूँगा कि इवन कृष्ण ने भी गीता में यही बोला है। आई मीन ये जो फ़िलॉसफ़ी है मेरे में कृष्णा से नहीं आई है, ये फ़िलॉसफ़ी मेरे में पहले से ही थी। बस जब मैंने गीता पढ़ी, कुछ चीज़ें देखी तो आई वाज़ शॉक्ड कि यार कृष्ण ने तो ये ऑलरेडी बोल रखा है, वॉव! आई एम फैंटास्टिक। सो मैं यही बोलूँगा कि लोक कल्याण के लिए काम करो, ह्यूमैनिटी के लिए काम करो, कुछ एआई से या फिर टेक्नोलॉजी से या फिर अपनी फ़िलॉसफ़ी से आप बुक लिख कर के भी लोगों का कल्याण कर सकते हो। आप लोगों का जैसे जिस तरह से आप भी कर रहे हैं, आप अच्छे लोगों के पॉडकास्ट ले रहे हैं जिससे कि आप एक सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज आप अच्छे लोगों को पहुँचा पाएँ। सो लोक कल्याण के लिए काम करो, सिर्फ़ अपने सेल्फिश पर्पज़ के लिए फिर पैसों के लिए काम मत करो। लोक कल्याण के लिए काम करो, ह्यूमैनिटी के लिए काम करो। यू विल बी रिमेंबर्ड फॉरएवर, यू विल बी वर्शिप्ड एंड यू विल बी हैप्पी। सो दैट्स ऑल। Now you mentioned about purpose. Yeah. What is your purpose? Yes, ma'am. My purpose is to take this very world next leap forward, just like Nikola Tesla did, just like Albert Einstein did, just like Steve Jobs did, just like Elon Musk is doing. So Elon Musk is already in the space part with their company SpaceX. So I wants to work on anti gravity technology. अगर मैं भी रॉकेट्स वगैरह में काम करने लग जाऊंगा तो मैंने जो Oh, इंस्पिरेशन ली है एलोन मस्क से वो किसी काम की नहीं है। if you are doing the same thing that has been done by your inspirations, you are not learning enough from them। ये बोली थी correct. इन्होंने, Correct. पीटर थील ने ये बात बोली थी, पेपाल के जो फाउंडर है। सो दैट्स द थिंग। तो ये नहीं कि मैं अगला मैकबुक का कंपटीशन आके खड़ा कर दूं, नहीं। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि कैसे एक ऐसा डिवाइस बनाया जाए कि आप जस्ट जो सोचो वो आपकी आंखों के सामने आपकी आंखों से प्रोजेक्ट हो जाए। जैसे कि अभी इन भाई साहब ने, मार्क ज़करबर्ग ने एक चश्मा इन्वेंट किया है, स्पेक्स Yeah, इन्वेंट करें yeah, कि आप उस चश्मे से कुछ भी देख सकते हो, रेबैन का है वो। तो right. वो ऐसा कोई महान इन्वेंशन नहीं है, कोई बहुत बड़ी इन्वेंशन नहीं है वो। तो इन्वेंशन कर रहे हैं इलोन मस्क के न्यूरल लिंक। आई मीन आप ब्रेन में चिप डालोगे, आई मीन आप कभी नहीं मर सकते, आपका सारा डेटा इस चिप के अंदर आ जाएगा। वो चिप एक आपकी जैसे दिखने वाले रोबोट के अंदर डाला जाएगा, वो बिल्कुल आपकी तरह बात करने लगेगा, आप सारी चीज़ें करने लगेगा। सो माय Oh my पर्पस goodness. Exactly, Yeah, exactly. So my yeah. purpose on working on anti-gravity technology so that colonization of planets and multi-planetary system easy हो पाए। एंटी ग्रेविटी पे मैं आगे काम करूंगा। अभी नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, उसमें भी तो मुझे पढ़ लिखना पड़ेगा, एक टीम बनानी पड़ेगी, पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, सबसे बड़ी बात। और दूसरी चीज, आई वुड लाइक टू वर्क ऑन द कॉन्शियस रोबोट्स, कॉन्शियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्शियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? When you're जिसको being conscious. हाँ, एक जो हम हैं, जो हमारे इनपुट की जरूरत ही ना पड़े उन्हें, वो हूबहू हमारे बन जाए। जो अगर किसी को शादी भी करनी है तो वो एआई से शादी कर सकता है। आई मीन एआई बच्चों को अडॉप्ट कर सकता है। सो यस, आई वुड लाइक टू वर्क ऑन दीज प्रोजेक्ट्स मैम। इसी Wow, इन रिलेशन में। fantastic. यस मैम। How cool. Love it. So now let's jump to some rapid fire. फॉर श्योर। Okay. Python or JavaScript? I mean, with all due respect, both languages has has equal powers when it comes to how they have changed the world. लेकिन अब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं तो मैं डेफिनेटली पाइथन को चूज करूंगा क्योंकि Cool. अब पाइथन जावास्क्रिप्ट को खाने वाला है। या Right. Debugging or building from scratch? डिबगिंग फॉर स्मार्ट वर्क, डिबगिंग फॉर स्मार्ट वर्क। या Most overrated AI tool?
Most overrated AI tool. I usually don't use any tool apart from ChatGPT, but I would say ChatGPT is overrated. I would say when it comes to generating the pictures, when it comes to generating PPTs. I firmly believe there are AI applications which are performing far better than ChatGPT. Oh, Like absolutely. Yeah, yeah. that True. that is why True. that is why, Correct. yeah, yeah. Correct. Now, one coding myth you want to bust. One coding myth I would like to bust, that programmers are nerds forever. Yeah. So, beach holiday or mountain escape? Mountain escape. अच्छा Kailash Parbat. सुकून है वहाँ पे Exactly. What, ma'am? सुकून सुकून. Exactly. Peace. बड़े बड़े पहाड़, डरावने पहाड़. exactly. So one superpower you wish you had. I would like to either be a Superman, or I would like to turn myself into both the genders whenever I want. I would like to turn myself into a woman whenever I want. I mean, not just another woman. I mean, most beautiful woman, just like like Lord Vishnu did with Mohini Avatar. And whenever I अरे want, I could turn into a man, so that I could I could manipulate bad peoples accordingly. So that's why. That is why. Yeah. cool. So one word that defines Sanskar Singh. Um, a human, or an alien. Yeah. If AI wrote your autobiography, what would the title be? I mean, that would be that would be autobiography of Sanskar, just as simple, like autobiography of Steve Jobs, autobiography of Adi Yogi, autobiography of Albert Einstein. So just like, great writers always keep the title simple. So I think autobiography of Sanskar. Yeah, I love keep things simple than being Nice, complex. Yeah, nice, very cool. yeah. Favorite reaction from a fan or a viewer. लास्ट टाइम जब अभी मैंने अपना फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया है, आई मीन मैंने अपना बोन स्ट्रक्चर चेंज किया है फेस का, आई मीन मैंने फिजिक अपनी अपग्रेड की है. सो आई मीन आई मीन लड़कियों की तरफ से रिएक्शंस मिलते हैं ढेर सारे, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट करते हैं. तो एक नहीं, कई सारे रिएक्शंस मिलते हैं, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है. Oh, good. या Favorite productivity hack. या फॉलो पार्किंसन रूल और पार्किंसन लॉ. सो पार्किंसन लॉ बोलता है ये कि भाई आप जिस भी काम को जितना टाइम दोगे कंप्लीट करने के लिए, वो उतने टाइम में आप कर पाओगे. लेट्स से कि मैंने अपने आप को एक टाइम दिया, कि मुझे, लेट्स से कि आपने अपने आप को टाइम दिया कि मुझे एक पॉडकास्ट आज ही खत्म करना है, इतने बजे से पहले खत्म करना है, तो आप उतने बजे से पहले ही खत्म कर पाओगे, उससे पहले खत्म नहीं कर पाओगे. सो सो प्रोडक्टिविटी. सो आई मीन जब एक रिसर्च की गई हार्वर्ड के थ्रू, तो ये पता चला कि हम लोग टास्क को डिले करते हैं. तो हम किसी काम को अगर 1 घंटा भी देंगे ना, तो हम उस टास्क को 1 घंटे में कर लेंगे बहुत ईज़िली. सो दैट्स द थिंग. सो पार्किंसन लॉ, अपने आप को एक टाइम अलॉट करो और उसी में अर्जेंसी क्रिएट करके उस काम को खत्म कर दो. या, Fantastic. That's या. a very, very, very powerful. That's very powerful. That's way powerful that we could ever Yeah. think. Yeah. Do you have a song, a go-to song when you're working? I prefer not listening to songs. Songs are the enemy of money. Songs are enemy to money. Yeah, that's the thing. I usually don't listen to songs, but sometime what I do is, I listen to I listen to mantras. I mean, I listen to music dedicated to God, dedicated to either Lord Shiva or Lord Vishnu. So that's all I do. So I don't corrupt my mind. I mean, मैं खुद को सिंप नहीं बनाना चाहता, मैं फालतू की चीजें नहीं. हाँ, बट कभी वैसे साथ में बैठे हैं तो माहौल क्रिएट करने के लिए बजा लिया गाना, वैसे कुछ नहीं. Nice. One thing you tell your younger self. Fly son, it's time. Nice. Very cool. Very cool. Yeah. मैम Wonderful. आप So what's पहला next? What's next? Yeah, go फर्स्ट ahead. क्वेश्चन आप दोबारा पूछेंगे एक बारी. फर्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा था, फर्स्ट क्वेश्चन जो रैपिड फायर में, Oh, रैपिड फायर rapid. का. The Python or No, no, no. JavaScript? No, no, no. Also, skip that. Okay.
कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए आप। या Acha. So one thing, oh, I think you already said one thing I think I lost my track. Anyway, यस मैम। so सो यू so what? आस्क्ड मी वन, आपने क्वेश्चन पूछा था इफ योर लाइफ वर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या होगा? आपने Yes. क्वेश्चन किया था मेरे से। Mhm. सो द नेम ऑफ माय मेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विल बी माया, MAYA, माया। Oh, इंडियन Maya. माया। Very cool. Very nice. या How cool. Very या cool. थैंक यू सो So मच what's मैम। next? What's next? I'm into books right now. I'm an ignorant person. I the more you read, the more you realize you know nothing. जितना आप पढ़ते Absolutely. जाते हो उतना आपको पता चलता है कि कितने गंवार हो आप। Absolutely. तो 100%. The अभी I मैं do not know universe is way more bigger, way bigger than the way I bigger than we know. could ever imagine. Actually, Yeah, interestingly, today my WhatsApp status is about that how little we know. really. Yeah. And that's a coincidence we have encountered in this podcast. That's beautiful. That's beautiful. सो आई मीन मैं जितना ज़्यादा पढ़ता जा रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, 0 to 1 टेक्नोलॉजी के बारे में, आई मीन बेसिकली 0 to 1 का मतलब होता है, दो तरह की चीज़ें होती हैं मैम, 1 to इन्फिनिटी और 0 to 1। सो 1 to इन्फिनिटी इज व्हाट सुंदर पिचाई हैज डन, कि एक गूगल कंपनी बनी बनाई है, वो 1 पोजीशन पे ऑलरेडी है, तो उसको उनको इन्फिनिटी पे लेकर के जाना है। एंड दैट इज व्हाट वी कॉल 0 to 1। जो चीज़ एग्जिस्टेंस में नहीं है दैट इज 0, उसको एग्जिस्टेंस में लाना दैट इज 1। सो 0 to 1, जैसे कि लैरी पेज आपका गूगल को एक्सिस्टेंस में लाए, जैसे कि स्टीव जॉब्स एप्पल नाम की कंपनी को एक्सिस्टेंस में लाए 0 to 1, जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी लेकिन अब एग्जिस्ट करती है। अब जो टिम कुक कर रहे हैं एप्पल के साथ, वो 1 to इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी मतलब कि वो चलती जाएगी, वो कभी रुकेगी नहीं। सो मैं जितना ज़्यादा पढ़ता जा रहा हूँ और आगे का बस ये है मैम कि अभी अगले 5 साल तक मुझे पढ़ाई पर ही ध्यान देना और पैसे इकट्ठे करने हैं ढेर सारे। बस मेरी प्रायोरिटी ये है कि बस मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं और अपनी पैसिव इनकम स्ट्रॉन्ग करनी है। देन पैसिव इनकम का मतलब समझते भी होंगे, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस पे कितना इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। तो एक्टिव इनकम से ज़्यादा मैं अपनी पैसिव इनकम करना चाहता हूँ। वो कर लूँगा तो मैं लग्जरी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए जी पाऊँगा, बट जो कि मुझे जीनी नहीं है, ऐसा कुछ खास शौक नहीं है मेरा। और देन उसके बाद मैं आई विल डेडिकेट माई सेल्फ फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। और उसके लिए मुझे जिसको छोड़ना Very होगा मैं उसको छोड़ दूंगा। मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ। इवन मैं जब आई मीन मेरी इवन मैंने अपनी फर्स्ट गर्लफ्रेंड को भी छोड़ दिया था इसी चक्कर में, वो ज़्यादा काम में घुसी थी। तो मेरे गोल्स काफ़ी क्लियर थे मैम। तो मेरे गोल्स काफ़ी क्लियर थे मैम। मैं शुरू से ऐसा रहा हूँ। मुझे कभी कोई अपने हिसाब से मैनिपुलेट नहीं कर, मतलब मेरे को लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपना काम निकलवा सकते हैं। मैं थोड़ा-सा सीधा-साधा हूँ। लेकिन जब बात आती है टेक्नोलॉजी की, जब बात आती है दुनिया को बदलने की, जब बात आती है मेरे लक्ष्य की, तो उसको कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता। दैट्स द थिंग। fantastic. I love it. Absolutely. So it was मीन्स अ such लॉट a मैम। pleasure talking to you, Sanskar. Me too, And man. I think we've covered most of it. Yeah, So definitely. in case we have further questions, we'll reach out to you. Definitely, My definitely. team will reach out to you. It was really a lovely conversation. Means a lot, Thus, man. I would love to know how you found talking to us as well. कैसा लगा हमसे बात You करके? people are beautiful. अब बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। तो आप मेरी बॉडी लैंग्वेज पे आपको मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं, आप सीधा मेरे चेहरे पे देखो। अब मेरी बॉडी लैंग्वेज को देखो, मैं कितना खुश हूँ आप लोगों से बात करते वक्त। मुझे बहुत मजा आया मैम, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। और बस मैं यही चाहूंगा कि आपकी बस यूट्यूब आपको और अच्छे से सपोर्ट करें, आपके पॉडकास्ट वायरल हों, आप और अच्छा कंटेंट बनाएं। बाकी कभी भी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको मेरी हेल्प चाहिए तब मुझे ज़रूर बताइएगा। Thank you, For sure, Sanskar. ma'am. Thank Means a you. lot, ma'am. Yeah, good luck, Bye bye. ma'am. Yeah, Have a thanks, Eva. beautiful day. Yeah, you too. Bye. Yeah, Yeah. bye.